Hello students, so let's continue this chapter which is progression or sequence and series. So अभी तक हमने क्या पढ़ा? We have done like sets, sequence, series and progression इनके differences, and now I am going to do some questions of the progression. प्रोग्रेशन में यूजुअली जो आपने पढ़ा होगा दैट इज बेसिकली या पढ़ना है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड देयर कॉम्बिनेशंस. बट हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फर्स्ट लेट मी गिव यू सम एग्जांपल. दिस इज टीएन. टीएन का मतलब क्या होता है? टीएन का मतलब होता है nth टर्म, दैट इज स्टैंडर्ड नोटेशन. समटाइम्स वी आल्सो राइट an. an is also called nth term. So tell me what would be first term? First term will be t1, second term will be t2, third term will be t3. So the elements or entries or numbers of this progression are t1, t2, t3, t4 या फिर a1, a2, a3, a4. So I am going to use tn. So suppose if I say tn is 2n minus 3. So what do you say about the progression? The progression will be, if I put t1, so n की जगह 1 रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 2 into 1 minus 3 that is minus 1. अगर n को 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 into 2 that is 4, 4 minus 3 that is 1. Now we put n equal to 3 for third term. 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 minus 3 that is 3 and then I will get 5, 7, 9. This is called arithmetic progression. This is called arithmetic progression. डिटेल में अभी बताएंगे, बट अभी वी आर जनरल प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं. लेट मी टेक n square plus n plus 1. What would be this progression? So t1 that is first term will be 1 square plus 1 plus 1 that is 3. n को 2 पुट करो, क्या मिलेगा? 7. n को 3 पुट करेंगे, what do we get? 9 plus 3 plus 1 that is 30. n को 4 पुट करो, 16 plus 4, 20 plus 1, 21, and this is another. Let me take another example. 2n plus 1 by n. This would be what? t1 will be 2 plus 1 by 1. t2 will be 4 plus 1 by 2. t3 will be 6 plus 1 by 3. And so on. Okay, so let me take another one. Tn equal to 2 power n upon n into n plus 1. So t1 will be what? 2 power 1 upon 1 into 1 plus 1. इफेक्टिवली फाइनल 1 आएगा, बट लेट्स नॉट गो इनटू देयर. n को 2 रखेंगे तो 4 अपॉन 2 इंटू 3 आएगा. n को 3 रखेंगे तो 8 अपॉन 3 इंटू 4 आएगा, एंड सो ऑन. सो दीज आर बेसिकली सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रेशंस जहां वी आर गिवन द फॉर्मूला, द पैटर्न, द रूल एंड वी हैव टू राइट द सीक्वेंस. नाउ लेट मी डू इट अदर वेज. We are given 1 upon 1, 2, 3, 2 upon 2, 3, 4, 4 upon 3, 4, 5, and so on. Let me write one more. That will be 8 upon 4, 5, 6. So now you need to find what is Tn. कि Tn क्या होगा? तो जब आपको सीक्वेंस दिया होता है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न. अब पैटर्न अगर देखोगे, सो एवरी नंबर कंटेन 3 पार्ट्स, every term contain 3 parts.
if you see 1, 2, 3 and 4. So we will now think about these 4 parts individual. अगर न्यूमरेटर की बात करेंगे तो न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड 2 है, 4, 8, 16. सो नेक्स्ट टर्म 16 है. पैटर्न कैन यू सी? ये एक्चुअली 2 पावर 0 है, ये 2 पावर 1 है, ये 2 पावर 2 है, ये 2 पावर 3 है. सो जो nth टर्म में आएगा 2 पावर n, नो 2 पावर n नहीं आएगा, n-1 आएगा, क्योंकि फर्स्ट जो नंबर है वो 2 पावर 0 है, सेकेंड नंबर में 2 पावर 1 है, थर्ड में 2 पावर 2 है, फोर्थ में 2 पावर 3 है, फिफ्थ में 2 पावर 4 होगा, 10th में 2 पावर 9 होगा, nth में 2 पावर n-1 होगा. Now look at the denominator and this number. 3 parts है, 3 parts को 1 by 1 डील करेंगे. If you look at the first part, what you see is 1, 2, 3, 4, 5th में 5, 6th में 6, 10th में 10, nth में n. सेकेंड पार्ट की बात करते हैं. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 3 है, थर्ड में 4 है, 10 में 11 होगा, n में n+1 होगा. सिमिलरली आप ये थर्ड टर्म को देख करके भी बता सकते हैं. और अनदर पैटर्न इफ यू सी कि फर्स्ट नंबर तो जब ने लिख लिया, इसमें +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 and that will give me +2. So that is nth term. Again, this is a progression. So this is about the basic idea of progression, जिसमें कोई न कोई आपको रूल होगा that will give you the formula for nth term. I hope it's understood completely. Okay. So now I'm going to start special progressions. Special progressions की बात करें तो we have to deal with 3 mainly. The first one is called arithmetic progression, which is also called AP in short. ये AP आपने पहले 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. AP के बारे में आपको पता है कि AP में हर 2 टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होता है. उस कांस्टेंट को हम कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. एक फर्स्ट टर्म होता है. सो लेट्स रिवाइज दैट. सो व्हाट इज एपी? तो जब हम एपी की बात करते हैं तो पीपल से कि सर हर 2 टर्म का डिफरेंस फिक्स होना चाहिए. दैट इज करेक्ट, बट एट द सेम टाइम इट मे बी रॉन्ग आल्सो, बिकॉज लेट मी राइट 1, 3, 5, 3, 1. Is this an AP or not? You will say no sir, it is not AP because इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस you will say -2 है, इसका डिफरेंस you will say -2 है. But that is not correct. डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं होता है. हम कहते हैं भाई a - b तो ऐसा लिखते हैं, हम बोलते हैं b - a तो ऐसा लिखते हैं. But when we say difference of a and b, to we write it like this. This is basically symbol of difference. और difference का मतलब होता है a minus b का absolute value. You can also say b minus a का absolute value. मतलब difference is always positive. And in that scenario, I will say कि difference is all of 2. हर 2 टर्म का डिफरेंस 2 है and so it should be an AP by your definition, but it is not. And so the correct definition you will say, or you actually know कि any term is obtained by adding a fixed number to its previous term. So A में अगर एक फिक्स नंबर में ऐड कर देता हूं तो that will give me A plus D. फिर से मैंने d ऐड किया तो I will get a plus 2d. फिर से d ऐड किया तो I will get a plus 3d.
एंड दिस इज एक्चुअल एपी जो आपने पढ़ा भी है, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जो कि डिफरेंस इज एक्चुअली नॉट राइट. सो द आइडिया इज कि एवरी टर्म is obtained by adding a fixed number to its previous term. Now we have to start somewhere, to be started from A. So this is called your AP. So what is AP? A sequence of numbers in which every number, except you can say first, is obtained by adding a fixed number to its previous term. As simple as that. तो अब ये AP कुछ नया नहीं है. This is not something new. You see it so many times in your daily routine. If you see the calendar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या लिखा होता है? AP होता है. You see your watch, उस पे क्या लिखा होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 12. That is what? An AP. और कहाँ AP आपने देखा है? बचपन से AP देखते आ रहे हैं आप लोग. जब आप छोटे थे तो आपको क्या सिखाया जाता था? टेबल्स. टेबल में क्या होता था? 1 का टेबल AP है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 का टेबल 2, 4, 6, 8, 10 AP है. 3 का टेबल 3, 6, 9, 12 AP है. 17 का टेबल नहीं याद है आप लोगों को. वेरी बैड. सो एवरीथिंग, मतलब सो मेनी थिंग्स दैट यू सी आर बेसिकली AP. तो AP कुछ नया नहीं है अपने लिए. ओके, अब AP में दो मेन चीजें हमें पढ़नी होती हैं. First one is TN and second thing is SN. So let me first start with TN. TN is basically a general term, we call it, which is actually nth term. nth term की हम बात करते हैं और nth term क्या होगा. अभी लास्ट एग्जांपल में आपने देखा कि हमें जब भी कोई पैटर्न फाइंड करना होता है, कोई nth टर्म फाइंड करना होता है, तो वी सी अ पैटर्न अगर यहां देखोगे, सो दैट पैटर्न यू कैन इजीली से कि एवरी नंबर कंटेन ए, सो nth टर्म विल आल्सो कंटेन ए. देन एवरी नंबर कंटेन डी, सो दिस विल आल्सो कंटेन डी. अब डी का कोफिशिएंट अलग अलग है. यहां पे आई कैन से कि 0D है. सो डी का कोफिशिएंट फर्स्ट में 0 है, सेकंड में 1 है, थर्ड में 2 है, फोर्थ में 3 है, फिफ्थ में 4 होगा, सिक्स्थ में 5 होगा, 10th में 9 होगा, nth में n-1 होगा. एंड दिस इज फॉर्मूला फॉर योर nth टर्म ऑफ AP, whose first term is A and what do we call this? D. This D is called common difference. So A हो गया हमारा first term और D is called common difference because the difference is common. और शायद यही आइडिया है, इसी वजह से यू से कि सर डिफरेंस फिक्स होता है, बट एक्चुअली हमेशा डिफरेंस फिक्स होगा तो AP होगा. दैट इज नॉट ट्रू. बट AP में डिफरेंस फिक्स होता है, दैट इज ट्रू. सो दिस इज योर nth टर्म का फॉर्मूला. एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स. सो फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूं, A प्लस n-1 into D. You see this line? This line is actually a form of bracket. This is called line bracket. If you want, you can use this also, or you can use that line bracket also. So let us start with an example. -3, 1. Next number AP है, ये आपको पहले बता दिया मैंने. Next term will be 5, 9, 13 and so on. You need to find T5, T10, T17, T24. Now take a pause and solve these questions. Pause करो वीडियो को और क्वेश्चन सॉल्व करो अपने आप. Don't wait for me to solve. Okay. So I am going to solve it.
अगर आपने पॉज नहीं किया है, सॉल्व नहीं किया है, तो प्लीज पॉज एंड सॉल्व द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चंस एक्चुअली। सो T5 की बात करते हैं। Whenever we talk about AP, हमारे दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, फर्स्ट A और सेकंड D। अगर आपके पास A और D है तो बस आपको लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। सो A इफ यू सी वो हमारे पास है -3 एंड D यू ऑलरेडी नो ना, क्या ऐड करने से मिलता है 4, सो D इज 4। सो T5 विल बी A plus 5 minus 1 into D, -3 plus 16 and that is 30. All good? वापस से अगर कुछ गलती हुई है आपके सॉल्व करने में तो फिर से पॉज करो और सॉल्व करो एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट। A plus n minus 1 into D and that comes out to be -3 plus 36, that is 33. Now T17 will be A plus n minus 1D -3 plus 64, that is 61. And T24 is A plus 24 minus 1D -3, 23 into 4 is 92, that is 89. तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे, आपने 10th में किए हुए हैं एंड सो यू वुड हैव गॉटन द राइट आंसर। But my purpose was not these questions, but something different. Now you need to find E5, E10, E17 and E24. Now you will say, sir, what is E5? So guess what would be E5? E से क्या हो सकता है? तो some of you may guess correct or wrong, whatever it is, but ER is basically rth term from end. जो end से rth term होगा that is called ER. So for that I need to give you total number of terms. So let us take कि there are 25 terms. So if you need to find 25 term total है और end से fifth find करना है, तो ये बताओ जो एंड से फिफ्थ होगा वो स्टार्टिंग से कौन सा होगा। ये 25 सीरीज टर्म का सीरीज है, सीक्वेंस है। अगर आप इसमें फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करना चाहते हो तो वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा, एंड दैट विल बी T20। 25 से 5 कम करेंगे तो 20 आएगा। ऑल गुड? एक्चुअली नो, T20 नहीं होगा। लेट मी सी, लेट मी शो यू एक्चुअली। 25th, 24, 23, 22, 21, 20, इधर 1, 2, 3। जो लास्ट से फर्स्ट टर्म है वो 25 है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। सो लास्ट से जो फिफ्थ टर्म है वो स्टार्टिंग से 20th नहीं आया, 21st आया। And so I am going to tell you that ER is T n minus R नहीं होता है, क्या होता है n minus R plus 1. So always remember कि अगर आपको end से rth टर्म निकालना है तो वो स्टार्टिंग से n minus R plus 1th टर्म होगा। So that will give you T21 and that will be A -3 है प्लस n minus 1 into D -3 plus 80 and that is 77. Now you pause the video and solve these. Okay. I am going to start solving, but you have to solve on your own before looking at my solution. Okay. So let's see. जो E10 है वो T में क्या होगा, वो T में होगा 25 minus 10 plus 1 that is T16. जो E17 होगा वो 25 minus 17 8 नहीं होगा, that will be T9. और E24 जो होगा वो 25 minus 24 1 नहीं T2 होगा,
n minus r plus 1. This is something that you do not study in class 10th but only in JEE. So T16 will be a plus n minus 1d and that is 57. T9 will be a plus 8d that is 29. And T2 will be a plus 1d and that is 1. And now we are going to do something good. Let's see. T5 plus E5 का वैल्यू बताओ. T5 plus E5 will be 13 plus 77 and that is 90. T10 plus E10 that will be 33 plus 57 that is again 90. Then see T17 plus E17 that is again 90. You see T24 and E24 is again 90. So what we see here is कि कोई भी टर्म आप ले लो, rth term from the beginning and rth term from the end, and that is going to be a constant. So किसी भी सीरीज में स्टार्टिंग से rth टर्म और एंड से rth टर्म का सम हमेशा फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा. क्या होगा वैल्यू? वैल्यू आई कैन से, अगर मैं r को 1 पुट कर देता हूं, इफ आई पुट r इक्वल्स टू 1 देन व्हाट डू आई सी? T1 प्लस E1. व्हाट इज T1? T1 को हम a बोला करते थे और E1 मतलब एंड से फर्स्ट टर्म को क्या बोलते थे? That was actually last term, or last term was actually called L. So this would be A plus L. So किसी भी AP में स्टार्टिंग से rth term और end से rth term का sum will always be a constant and that will be equal to A plus L. Let me show you by another method. कोई भी AP की बात करते हैं, a plus d, a plus 2d, लास्ट टर्म मैं l लिख देता हूं, तो उसके पहले वाला टर्म क्या होगा? उसके पहले वाला टर्म होगा l minus d, उसके पहले वाला टर्म होगा l minus 2d and so on. Now if we add first and last, I am going to get what? a plus l. अगर मैं सेकेंड और सेकेंड लास्ट को ऐड करूंगा, so again I am going to get what? a plus l. क्योंकि जैसे जैसे d ऐड करेंगे वैसे वैसे d सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, अल्टीमेटली सम विल रिमेन सेम a प्लस l. सी हियर ऑल्सो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस से आपको क्या मिला? a प्लस l. सो दिस इज अ प्रॉपर्टी और रिजल्ट दैट यू हैव टू नोट डाउन. आई एम गोइंग टू डिक्टेट इट एंड यू हैव टू राइट. सो राइट डाउन sum of rth terms from both the ends is a constant and is equal to sum of first and last term. तो TR plus ER equal to A plus L. So अब इसका एक एप्लीकेशन लेट मी शो यू. ये अपना पूरा AP है up to nth term. Suppose we have to add all these. अगर ये सारे नंबर्स मुझे ऐड करने हो, so how do I add? We know that कि भाई इन दोनों का सम a plus l होगा, इन दोनों का सम a plus l होगा, इन दोनों का सम a plus l होगा. मतलब एवरी पेयर का वैल्यू a plus l है. अब अगर टोटल n टर्म्स है तो कितने पेयर्स बनेंगे? अगर टोटल n टर्म्स हैं तो नंबर ऑफ पेयर्स विल बी n by 2. नंबर ऑफ पेयर्स विल बी n by 2 और हर पेयर की वैल्यू a plus l है. तो जो टोटल सम हुआ दैट इज व्हाट? n by 2 a plus l. ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा. नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ l. l का वैल्यू क्या है? l का वैल्यू होता है a plus n minus 1d
and that will give me n by 2 2a plus n minus 1 into d. ये दोनों फॉर्मूले आपने पहले पढ़े हुए हैं and these are formulae for sum of n terms, first n term, that is very important, sum of first n terms of an AP. So इसका एक और तरीका भी, a plus d, a plus 2d up to a plus n minus 1d. एक सीरीज है n टर्म्स का जिसका वैल्यू s मान लिया हमने और लेट्स से Sn. आई एम गोइंग टू राइट दिस सेम सीरीज, बस उसका ऑर्डर चेंज कर देता हूं. जो फर्स्ट टर्म है, लास्ट है एक्चुअली, वो सबसे पहले लिख देता हूं मैं. उसके पहले वाला टर्म क्या होगा? उसके पहले वाला टर्म होगा a प्लस n माइनस 2d. उसके पहले वाला टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 3d. और ऐसे करते करते जो लास्ट में आएगा वो ये फर्स्ट वाला टर्म आएगा एंड दैट विल बी a. दिस इज अगेन वापस Sn ही होगा क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से सम में कोई डिफरेंस नहीं आता है. Now if I add, I will get 2Sn equal to. Now tell me, what is the value of this sum? It is 2a plus n minus 1 into d. What is the sum of these two? Again 2a plus n minus 1d. Sum of these two. Again 2a plus n minus 1d. And last, again 2a plus n minus 1. So what we see that कि हर एक वैल्यू 2a plus n minus 1d है. ऐसे कितने सम मिलेंगे हमें? There are total n terms. So n सम मिलेंगे तो इसको into n मैं कर सकता हूं. अब इसको पॉज कर लो और सोचो इसके बारे में. It should be very clear. Then only you start the video again. So what would be Sn? Sn will be n by 2, 2a plus n minus 1d, and this was your formula. So this is it. So that is your formula for Tn and Sn. Now let me get back to where we started with a plus n. PR और ER वाले क्वेश्चंस थे. सपोज आपसे E5 पूछा गया है. सो एक तरीका था कि E5 को T में कन्वर्ट कर लो. T में 21 आया था. वन मोर मेथड इज देयर. इसको उल्टा कर लेते हैं. इसको मैं फर्स्ट टर्म मान लेता हूं. सो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस माइनस डी हो जाएगा. अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म मान लेता हूं, कॉमन डिफरेंस माइनस डी मान लेता हूं, तो जो फिफ्थ टर्म आएगा वो एक्चुअली एंड से फिफ्थ टर्म होगा. परफेक्टली ऑल राइट. बट फॉर दैट फर्स्ट आई नीड टू फाइंड दिस 25th टर्म एंड दैट विल बी a प्लस n minus 1d and that is 93. So E5 will be what? A plus n minus 1 into d और d will become minus 4 क्योंकि आगे जाने में 4 ऐड कर रहे हैं तो पीछे आने में 4 माइनस करेंगे. तो 93 minus 16 and that comes out to be 77. All good? मैच कर लो. सेम आंसर आया. So this is another method that is usually told in the classes. But the problem with this method is कि आपको 25th term find करना पड़ेगा. तो एक अलग से एक क्वेश्चन हो गया and this is second question. तो एक क्वेश्चन के लिए आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े. तो what my point is कि अगर क्वेश्चंस में नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं या फिर 25th टर्म दिया हुआ है, तो अगर 25 टर्म्स लिखे हैं तो ER को T में बदल लो n माइनस R प्लस 1 से. और अगर 93 दिया हुआ है तो ER के लिए वी कैन यूज L प्लस
r माइनस 1 इंटू माइनस डी। दोनों में क्या है, अगर मैं बोलूं ये दिया हुआ है और आप ये फॉर्मूला लगाओ तो नहीं लगा सकते, बिकॉज आपको n का वैल्यू नहीं पता है। तो या तो फिर आप n का वैल्यू निकालो, फिर भाई डबल काम हो गया। सो बोथ द मेथड्स आर इक्वली गुड, डिपेंड्स ऑन द व्हाट इज द डेटा गिवन। अगर नंबर ऑफ टर्म दिया है तो ये मेथड अच्छा है, लास्ट टर्म दिया हुआ है तो ये मेथड अच्छा है। सो दिस इज अबाउट द nth टर्म्स ऑफ AP, which was a plus n minus 1d, and then nth term या rth term from the end का भी concept। Let's solve some more questions। एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, फिफ्थ टर्म इज 17 and 17th term is 5, then find 22nd term। Fifth term is 17, 17th term is 5, you need to find 22nd term। Now see, जैसे आपके दिमाग में AP की बात आती है, the first thing that should strike to your mind is A और D। अगर A और D पता है तो फिर आपको और कुछ नहीं चाहिए। A और D फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअली में दो अननोन है और टू अननोन्स है, तो हमें टू इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। सो टू इक्वेशंस आपको गिवन है, so let's use them and find value of A and D, and then we can find the value of T22। so T5 का फॉर्मूला हो जाएगा A plus 4D और T17 will be A plus 16D। now we can find the value of A and D and find the answer। सबट्रैक्ट करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को, तो ये A और A कैंसिल हो जाएगा। 16 minus 4 will give you 12, 5 minus 17 will be minus 12, D comes out to be minus 1, D comes out to be minus 1। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर मैं D का वैल्यू पुट करता हूं तो A minus 4 इक्वल टू 17 आएगा, सो A comes out to be 21। A मिल गया, D मिल गया, means we can find anything now and that will be A plus 21D। A का वैल्यू है 21 और D का वैल्यू है -1, it comes out to be equal to 0। Some of you may remember a question from class 10th। ऐसा ही एक क्वेश्चन क्लास 10th में था, and that was pth term is Q, qth term is P, find P plus qth term। सेम क्वेश्चन देखना, P का वैल्यू 5 है, Q का वैल्यू 17 है और ये देखो P plus Q। तो सेम क्वेश्चन है, पहले मैंने न्यूमेरिकल में सॉल्व कराया, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आएगा, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर P and Q। आइडिया इज अगेन सेम, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, वी कैन डेफिनेटली सॉल्व एंड आई विल गेट इक्वल टू Q। A प्लस Q माइनस 1D इक्वल टू P। सबट्रैक्ट करेंगे तो A और A कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा P माइनस QD इक्वल टू Q माइनस P, एंड D विल बी व्हाट, Q माइनस P अपॉन P माइनस Q। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, और बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स स्टक एट दिस पॉइंट। बहुत सारे बच्चे यहाँ रुक जाते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, आइडिया नहीं आता कि क्या है। बट इफ यू सी इट इज वेरी सिंपल, माइनस कॉमन लोगे ऊपर से तो P माइनस Q आएगा, नीचे भी P माइनस Q है तो बेसिकली -1 आया, एंड इफ यू मैच यहां भी D का वैल्यू -1 ही आया ना। I am going to use this value of D in this equation। यहां मैंने फर्स्ट में यूज किया था, सेकंड में भी कर सकते थे, चलो यहां फर्स्ट में यूज किया था तो इस बार सेकंड में यूज कर लेते हैं। सो दैट विल गिव मी A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू P। तो A माइनस Q प्लस 1 इज P, तो A कम्स आउट टू बी P प्लस Q माइनस 1। देखो P प्लस Q इज 25, 25 माइनस 1 इज 21, सेम टू सेम आया। सो A मिल गया, D मिल गया, नाउ वी कैन फाइंड
TP plus Q and that will be A plus n minus 1, n है ये, into D that is minus 1. मैं सीधा 0 लिख सकता हूं बट लेट मी नॉट. P minus P, Q minus Q, minus 1 plus 1 comes out to be 0, that is matching. तो ये क्वेश्चन बेसिकली 10th स्टैंडर्ड में आपने किया हुआ है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं थोड़ा इसमें चेंज करता हूं एंड चेंज इज कि भाई टी आर एथ टर्म बताओ, नॉट P प्लस क्यू एथ टर्म. P एथ टर्म Q है, Q एथ टर्म P है, R एथ टर्म बताओ. R एथ टर्म क्या हो जाएगा? A plus R minus 1D. What is A? P plus Q minus 1. What is D? Minus 1. P plus Q minus 1 plus 1 cancel. हमें मिला P plus Q minus R. And this is very good result I will say. तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म मतलब T1, मतलब R की जगह 1 रखना है. R को 1 रखोगे तो P प्लस क्यू माइनस 1 आएगा. और देखो ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, P प्लस क्यू माइनस 1. सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड होगा P प्लस क्यू माइनस 2. थर्ड क्या होगा? P प्लस क्यू माइनस 3. फोर्थ क्या होगा? P प्लस क्यू माइनस 4. टेंथ क्या होगा? P प्लस क्यू माइनस 10. pth टर्म क्या होगा? P प्लस क्यू माइनस P. P और P कैंसिल हो जाएंगे, Q बचेगा और वो हमें गिवन है कि pth टर्म इज Q. QH टर्म क्या होगा? P प्लस क्यू माइनस क्यू. ये कैंसिल हो जाएगा, P बचा, वो भी हमें गिवन. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. यू कैन सॉल्व वन मोर एग्जाम्पल. दैट इज योर होमवर्क. यू कैन से mth term is 1 by n, nth term is 1 by m, find mnth term. That is your actually homework. You can solve it at your place. Thank you.